دنیا کے تمام جنگلوں کو اگر قلم بنا لیا جائے ان کے درسوں کا، اور پھر اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، تو ہماری زبان قاصر رہ جائے گی، سمندر سوکھ جائیں گے، اشجار ختم ہو جائیں گے، قلم گھس جائے گی، ٹوٹ جائے گی میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی اگر نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اپنی نعمتیں نثار کی ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ چند منٹ کے اندر اگر آپ سوچنا چاہیں، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، درند چرند پرند، جنگلوں کے اندر رہنے والے جانور، سمندر کے اندر رہنے والی جو ہے مچھلیاں، جانور، اور آسمانوں میں اڑنے والے پرندے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ سب کے سب اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ چڑیا بھی چہل چہل کر لیتی ہے نام تیرا میرے بھائیو دوستو، یہ چڑیا بھی اللہ رب العالمین کے نام کو جپتی ہیں، مالا جپتی ہیں، اس کی وحدانیت کی گیت گاتی ہیں۔ لیکن ہمارے جیسا نااہل انسان اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور آقا مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر بھی حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ سب سے کنجوس انسان وہ ہوگا جو اللہ کے نبی آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے، چپ بیٹھ جائے، وہ سب سے بڑا بخیل کنجوس انسان ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دے۔ جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ذات نہیں ہے جس کی ہم پرستش کریں، جس کی پوجا کی جائے۔ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ یہ دل سے کہنے کی بات نہیں، زبان سے کہنے اور دل سے اقرار کرنے کی بات نہیں، دماغ سے سوچنے کی بھی چیز ہے کہ اگر ہم اتنی چھوٹی سی بات جب بھی آقا مدینہ کا نام آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، ہمارا نام اللہ کے اس رجسٹر میں جو فرشتے نوٹ کرتے ہیں کنجوسوں اور بخیلوں میں لکھا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے کلام ربانی کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں قیامت کی ہولناکی کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے دلیل دینا چاہتا ہوں، روشناس کرانا چاہتا ہوں کہ قیامت جب آئے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ ایک شاعر نے، ایک علامہ نے اس ہولناکی کا منظر کھینچا ہے کہ قیامت آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اسی کا ترجمہ کر دیا ہے اپنے شعری انداز کے اندر کہ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم اللہ رب العالمین کی یکتا وحدانیت کے گیت گانے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دیوانے ہو چکے ہیں، کسی اور کو جو ہے اپنا منبع مانتے ہیں، کسی اور کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چھوڑ کر کے انہیں اپنا نبی مانتے تو ہیں، زبان سے صرف کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، دماغ سے بھی آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، دل سے بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ آقا مدینہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں کہ جو جن کی شفاعت پر ہمیں جنت الفردوس مل سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد کرو وہ دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کو سامنے لا کر کے پیش کر دیا جائے گا، جہنم سامنے ہوگی، جہنم پوچھ کر اللہ سے کہے گی اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے میرے اندر صرف ان 3 لوگوں کو داخل فرما جن کی وجہ سے میں آج تڑپ رہی ہوں، جن کی وجہ سے میں
जो गम है मैं उन्हीं लोगों पर उतारना चाहती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, कहेगा तुझे वो कौन लोग हैं जिनकी तू मतलाशी है, जिनकी तुझे खोज है, जिसकी तू फिक्रमंद है, वो जहन्नम अल्लाह से खुद जो है अल्लाह को जवाब देगी, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरे अंदर सबसे पहले उस इंसान को डाला जाए जो इंसान बूढ़ा हो और जानी हो, यानी उम्र उसकी 40 की हो गई हो, 40 पार कर गया हो, बुढ़ापा लग गया हो, कब्र में पैर लटक गया हो, उसको यकीन न आ रहा हो, उसके सर के बाल पक रहे हो, दाढ़ी मोछ पक रहे हो, फिर भी वो अपने आप को जवान महसूस कर रहा हो और फिर भी वह यासियां कर रहा था दुनिया के अंदर। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरे अंदर उस इंसान को डाल जिसके सर के बाल भी पक गए थे, दाढ़ी मोछ भी पक गए थे, बूढ़ा भी हो गया था, लेकिन अपने आप को बूढ़ा तस्लीम नहीं कर रहा था। सबसे पहले मेरे अंदर उस इंसान को डाला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते ऐसे इंसानों को उठाएंगे, जकड़ेंगे और जहन्नम के अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर जहन्नम कहेगी, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अब मेरे अंदर उस इंसान को डाला जाए जो अपने माँ बाप को गाली देता था, गुरूज देता था, बुढ़ापे में सताता था, मारता पीटता था, या अपने जो है बाप को रुस्वा कर देता था, भरे चौराहे पर जलील कर देता था, 10 आदमी के सामने नंगा कर देता था, उस अपनी डिमांड को पूरा ना होने की वजह से उसको गालियां देता था। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे इंसान को जो अपने माँ बाप को सताता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों को भी बोलेगा, ले जाओ इनको पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को जहन्नम में डाला जाएगा। जहन्नम का दूसरा डिमांड होगा, वो दूसरा डिमांड ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन को सताया हो और वालिदैन के हक को पूरा ना किया हो, वालिदैन को गाली गलौज दिया हो और उनसे इतना दूर भागते रहे हों अपनी बीवी बच्चों के खातिर कि जैसे उनके माँ बाप रहे ना हो, पैदा कर दिया बस हक अदा हो गया। ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। तीसरा वो इंसान होगा उन लोगों में, तीसरे लोगों में आज की जो है पॉपुलेशन भी शामिल है, आज के नौजवान भी शामिल हैं, आज के बूढ़े भी शामिल हैं, हम लोग सब शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो इंसान होगा जो तस्वीर बनाता हो, फोटो खींचता हो, सेल्फी ले रहा हो, नाहक नाजायज बगैर किसी काम के, बगैर किसी मकसद के, गलियों से निकल रहा हो फोटो खींच रहा हो, चौराहे पर जा रहा है फोटो खींच रहा है, खेतों में जा रहा है फोटो खींच रहा है, पार्क और बागीचे में जा रहा है फोटो खींच रहा है, ट्रेन या जहाज का सफर कर रहा है फोटो खींच रहा है, नाजायज किसी भी काम में ना आने वाली चीजों को वो फोटो खींच रहा है। उस फोटो खींचने वाले को जहन्नम मांगेगी तीसरे नंबर पर। इसलिए कहा जाता है मुसव्विर जो तस्वीर बनाने का काम करता हो, हाथ से लिख करके तस्वीर बनाता हो, कंप्यूटर से बना रहा हो, कैमरे से खींच रहा हो, मोबाइल से खींच रहा हो, फिर उसकी धुलाई कर रहा हो, लोगों को दे रहा हो, ऐसे की कमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में नहीं लग सकती। उसकी कमाई अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे, वो उसने वही पैसा चुना है वो खर्च कर सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर मुसव्विर की जो है कमाई का पैसा, फोटोग्राफर का पैसा, वीडियोग्राफर का पैसा मस्जिद के अंदर नहीं लग सकता। अब आप लोग खुद तस्लीम कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि उस इंसान की कमाई क्या जायज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-यौमा यफ़िररुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। क़यामत आएगा वो दिन कि जब महशर बर्पा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बराबर की, न ज़ौजा होगी शौहर की, वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने खड़ा करेगा और सवाल करेगा कि बता तूने दुनिया के अंदर क्या किया था, तेरा हक क्या था, मैंने तुझे पैदा कर दिया, तूने अपनी औलाद को तरबियत दी थी कि नहीं दी थी, तूने अपनी औलाद को जहन्नम से बचाया था कि नहीं बचाया था। कुरान शाहिद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ वो लोगों जो मुसलमान हो गए हो, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। नबी खुद उन लोगों से मुखातब हो रहे हैं कि ऐ वो लोग जिन लोगों ने मुझे तस्लीम
कर लिया है, मुझे अपना नबी मान लिया है, अल्लाह को अल्लाह मान लिया है, बताओ क्या तुमने अपनी औलाद को तरबियत दी थी? क्या तुमने अपनी औलाद को तरबियत दिया था? नमाज पढ़ने की तरबियत दी थी? रोजा रखने की तरबियत दिया था? बैठ करके पेशाब करने का जो है तरबियत किया था? आज की औलाद, आज के बच्चे, आज के नौजवान कहीं भी जाते हैं, सफर में हो, हजर में हो, जैसे भी हो, घर में हो, बैठना तसव्वुर नहीं कर सकते, खड़े खड़े पेशाब कर लेते हैं और उसके छींटे जिस्म पर पड़ते हैं। छींटों का जिस्म पर जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग जो खड़े होकर के पेशाब करते हैं जानवरों के जैसा, गाय भैंस के जैसा, घोड़े गधों के जैसा, कुत्तों के जैसा, उनका जब छींटा उनके कपड़ों पर पड़ता है, नापाक हो जाता है वो कपड़ा, और उस नापाकी के हालत में अगर वो इंसान मर जाए, जहन्नम के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिस्म भी नापाक, उसका कपड़ा भी नापाक, उसका रूह भी नापाक। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब इंसान मर जाता है, अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, अच्छे और बुरे दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग जो है बांट दिया है, अलग अलग चैप्टर में उनका जो है नाम शुमार कर दिया है। जब इंसान अच्छा होता है और जब उसकी मौत हो जाती है, फरिश्ता आता है, उसकी रूह को खींचता है, रूह खींचते वक्त ही वो फरिश्ता खुशखबरी सुना के जाता है, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, और रूह को खींचता है, ले जा करके दूसरे फरिश्ते को दे देता है। आसमानी दुनिया पर जो फरिश्ता है वो उस फरिश्ते को जो मौत रूह दे देता है और बोलता है ले जा, इसको जन्नत की सैर करा करके ले गया, और वो फरिश्ता उस रूह को दूसरे आसमान वाले फरिश्ते को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को, पांचवें को, छठे को, यहाँ तक कि सातवें आसमान पर जन्नत का जो सैर करा करके लाया जाता है, और फिर उसकी रूह को उसके कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। और डालने के बाद वही फरिश्ता, दो फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? मन रसूल का, तेरा रसूल का क्या कौन था? सिर्फ 3 सवाल करते हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी दिखाया जाता है कि बता ये कौन है? मन रसूल का, जब रसूल का नाम लिया जाता है तो चेहरा भी दिखाया जाता है कि पता ही नहीं पहचानता है। अगर इंसान जन्नती है तो उस चेहरे को देख करके पहचान जाता है कि हाँ, किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने बात बताया था या मैंने सुना था, ये वही चेहरा है, हमारे रसूल का जो है चमकता धमकता चेहरा है। इंसान चिल्ला उठता है और कह उठता है कि हाँ, ये हमारे आक़ाए मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो फरिश्ता कहता है, नम या हबीबी सालिमन, ऐ मेरे दोस्त, तू ठंडी नींद में सो जा, इस तरीके से सो जा। इस तरीके से वो रूह सो जाती है कि जिस तरीके से एक नौजवान जब सुहाग रात मनाता है, उसके थकावट होती है और थकावट के बाद जो उसको नींद आती है वो बड़ी ठंडी नींद होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस तरीके से वो फरिश्ता उन्हें दुआएं दे करके चला जाता है कि तू सही सलामत सो जा, और कब तक के लिए कि जब तक कि क़यामत नाज़िल ना हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, दूसरा रूह जो गंदी रूह होती है, जो बदबख्तों की रूह होती है, जो नाअहलों की रूह होती है, जो मुनाफिक और काफिरों की रूह होती है, जो ऐसे लोग जो मुनाफिक होते हैं, कलमा तैयबा पढ़ तो लिया लेकिन मस्जिद में आना तसव्वुर नहीं किया, ईद और बकरीद का नमाज पढ़ा हो, सिर्फ रमजान में ही नमाज पढ़ा हो, बाकी 11 महीने नमाज से दूर रहा हो, ऐसे इंसान की जो जहन्नम का जो है हकदार है, जब उसकी रूह को फरिश्ते खींचने के लिए आते हैं और देखते हैं तो वो रूह जिस्म के अंदर भागती है, तड़पती है। या अल्लाह के 2 फरिश्ते आते हैं, उसके पैरों के तरफ से उसकी रूह को जो है खदेड़ते हैं, यहाँ तक कि मारते हैं, तोड़ते हैं, पैर किसी काम का नहीं रहता, पैर से वो हिल नहीं सकता, कमर तक रूह आ जाती है, कमर तक तोड़ा जाता है, फिर वो रूह हलक तक आ जाती है, गला घड़घड़ाने लगता है। लोग बोलते हैं कि हाँ, अब खरखराहट आ रही है, गला फंस रहा है, शायद अब रूह निकल जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, अजियत और तकलीफ के साथ जिस रूह को निकाला जाता है, वो जब रूह निकलती है, मलकल मौत रूह को निकालता है, फरिश्ते को देता है। वो फरिश्ता ऐसे पकड़ता है उस रूह को, सड़ी हुई टाट की बोरी के अंदर, ऐसा कपड़ा या टाट का बोरा कह दिया जाए कि जो गंद करता हो, ऐसे रूह को ऐसे सड़े हुए जो है कपड़े में, टाट में लपेट करके वो फरिश्ता ले जाता है। जैसे औरतें
टॉयलेट अगर घर पे कर दे, पायखाना कर दे आंगन में, तो किसी पत्ते से उठाती है और दूर से हाथ रख करके ले जाती है कि फिर दोबारा न गिर जाए। गंदा समझ करके ले करके जाता है वो फरिश्ता, और दूसरे फरिश्तों को जब देता है वो फरिश्ता कहता है, हाय रे बर्बादी, तूने दुनिया तो पाया था, रसूल तो पाया था, कुरान तो पाया था, हदीस तो पाया था, लेकिन तूने अमल नहीं किया। सिर्फ एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, अमल न किया। तो वो फरिश्ता उस रूह को लानतान करता है, दूसरे फरिश्ते को देता है, दूसरा फरिश्ता भी उस पर लानत भेजता है कि तेरे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो, तेरे ऊपर फरिश्तों की भी लानत हो कि तूने दुनिया तो पाया, तूने अपना आखिरत बनाने का मौका तो पाया, लेकिन तूने अपना आखिरत नहीं बनाया, तूने अपनी जिंदगी नहीं संवारी और ऐशो इशरत में, मौज मस्ती में, लहो लैब में तूने अपनी जिंदगी को बिता दिया, चल तेरा ठिकाना जहन्नम हो। वो भी उसी तरीके से पकड़ता है और तीसरे चौथे फरिश्ते को देता है, चौथा पांचवें को देता है, पांचवा छठे फरिश्ते को देता है और ले जाकर के उसको जहन्नम दिखाया जाता है। और जब जहन्नम को रूह देखती है तो देखने के बाद तड़प जाती है और वो रूह खुद कहती है कि अब मुझे छोड़ दिया जाए, अब मुझे दुनिया के हवाले कर दो, मेरा रूह जहाँ से निकाल करके लेके आए हो वहीं डाल दो, मैं इस बार जो दुनिया के अंदर जाऊंगा या जाऊंगी तो यकीन है मुझे उस अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कि मैं उसके जंगलों के दरख्तों को, पत्तों को मैं खाऊंगी, जमीन के घास को भी खाऊंगी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहदानियत का गीत गाऊंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई किताब को मैं तिलावत करूंगी और उसके कुरान को पढ़ूंगी। लेकिन दुनिया के अंदर लहो लैब में न फंसने वाली, दुनिया के अंदर किसी और चीज में फंसने का काम नहीं मेरा, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करूंगा और जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूंगा। फरिश्ते कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, उसकी रूह फिर दोबारा जो है ला करके उसके कब्र के अंदर छोड़ दी जाती है। फरिश्ते आते हैं, फरिश्ता आता है और आने के बाद फिर वही सवाल करता है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो रूह कहती है, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। अरबी पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो, इंग्लिश पढ़ने वाला हो, पर्शियन पढ़ने वाला हो, दुनिया का किसी भी लैंग्वेज का माहिर हो, लेकिन उसके जबान से बात नहीं निकल सकती कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मेरा रब है। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो जबान खामोश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान नेक नहीं था, बदबख्त था, वो इंसान मुत्तकी परहेजगार नहीं था, मरहूम था। वो दुनिया में भी लोग उसको कहते थे कि देखिए फला इंसान के कोख से ऐसी औलाद जन्मी है जो मस्जिद तक नहीं जाती, जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता है, पान खाता चबाता है, खाता पीता घूमता है, लेकिन रोजे नहीं रख सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे रूह को फरिश्ता जब देखता है तो फरिश्ता भी समझ जाता है कि ये मलऊन है वो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें निछावर की, लेकिन उसने जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह नहीं समझा, रसूल को रसूल नहीं माना। दूसरा सवाल खुद करेगा कि मन रसूलों का, तेरा रसूल कौन है? और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोटो को दिखाएगा। वो इंसान कहेगा मैं नहीं पहचानता ये कौन से हैं। फिर पूछेगा तीसरा सवाल, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? फिर वही जवाब देगा, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दिया जाए। वो इंसान अपनी ऊपर ही कराहता रह जाएगा, लेकिन वो फरिश्ता बोलेगा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, और वो रूह उसके जिस्म के अंदर डाल करके चला जाएगा। दो फरिश्ते इसके ऊपर मुतय्यन किए जाएंगे, कोई सर को कुचलेगा, कोई पैर को कुचलेगा, कोई हाथों को कुचलेगा। कुछ देर के बाद कब्र के अंदर अजदहा निकलेगा, सांप निकलेगा, मोटे मोटे जानवर बिच्छू निकलेंगे, तरह तरह का अजाब होता चला जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया गिन नहीं सकती, कोई बयान नहीं कर सकता कि कब्र के अजाब किस किस तरीके से होंगे। मट्टी खुद खाएगी। एक हदीस के अंदर आता है, दोनों दीवारें आपस में चिपक जाएंगी, ऐसे चिपक जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे दोनों उंगलियां हाथ के दोनों हथेलियों को मिलाया जाए, ऐसे दोनों जो है दीवारें मिल जाएंगी, इंसान चकनाचूर हो जाएगा, सर कुचल जाएगा उसका। फिर भी वो इंसान अफसोस करेगा और यही सोचेगा कि शायद मुझे नजात मिल जाए, लेकिन उसको नजात नहीं मिल सकेगी मेरे भाइयों और दोस्तों। और उसको कब्र का अजाब देता ही चला जाएगा वो फरिश्ता। वो अजाब कभी खत्म नहीं होगी, यहाँ तक कि क़यामत तक वो अजाब होता ही चला जाएगा। क़यामत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्ते को बोलेगा, सुर फूंक दो। इसराफील सुर फूंकेगा। पहली बार जब सुर फूंका जाएगा, दुनिया के जितने भी जो है जानवर हैं, जितने भी मखलूक हैं, सब के सब मर जाएंगे। दूसरी बार जो सुर फूंका जाएगा,
हो जाएगी, पहाड़ भी उड़ जाएगा और दरख्त भी सब उड़ जाएंगे, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है हुक्म से एकदम सूख जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा मेरे भाइयों और दोस्तों। तीसरा जब सूर फूका जाएगा, फरिश्ते सूर फूकेगा, फरिश्ता सूर फूकेगा, इंसान जमीन से उठेंगे और हर इंसान नंगा होगा मेरे भाइयों और दोस्तों, और जवान होगा, 20 से 25 साल की उम्र होगी, ऐसी उम्र होगी कि दौड़ता हुआ हशर के मैदान तक पहुंचेगा वो इंसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जमीन सिकोड़ दी जाएगी, ये जो फर्श के जैसा, छत के जैसा जमीन जो फैली हुई है, ये जमीन भी अपना मुट्ठी बांध लेगी मेरे भाइयों और दोस्तों। छतरी के मानिंद ये जमीन हो जाएगी, छोटी हो जाएगी जमीन। पूरब का आदमी, पश्चिम का आदमी, उत्तर और दक्षिण का आदमी, सब हर कोई भाग भाग करके मैदान हशर की तशरीफ ले जाएगा, और वहाँ जो आलम होगा मेरे भाइयों और दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर चाहा तो अगले जुमा को फिर हश्र के मैदान के बारे में मैं बोलूँगा कि हश्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन अब क्या सवाल करेगा अपने नमाजियों से, अपने परहेजगारों से क्या सवाल करेगा, और वो इस लोग जो कुफ्र के हालत में मरे हैं उनका सवाल और जवाब होगा कि नहीं होगा, वो जन्नत पाएंगे या नहीं पाएंगे, काफिर को जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगा मेरे भाइयों और दोस्तों। इंशाअल्लाह अगले जुमा को मैं जन्नत और जहन्नम पर और हश्र के मैदान पर आप लोगों से मुखातब होऊंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।